So the next heading is ripple counter. आप heading लिखिए ripple counter. Next heading is ripple counter. जी प्लीज. अभी तक आपने बहुत आराम से रिलैक्स किया for first few minutes, but now I want absolute focus again. ठीक है? This is a very important part as of now what we consider counters के हिसाब से. ठीक? So first point, ripple counter is an asynchronous counter. Ripple counter जो है ये आपका asynchronous counter है, right? Asynchronous कैसे है क्या है वो मैं आपको भी बताऊंगा. Point number 2. In this counter, flip-flops are operated in toggle mode. In this counter, flip-flops are operated in toggle mode. Next point, input clock या clock, अब ये input clock में देखिए, clock is applied only to the first flip-flop. Clock signal is applied only to the first flip-flop. Whereas the output of this flip-flop acts as the clock for the next flip-flop. So the main clock signal is only applied to the first flip-flop. So आप में समझते भी जाओ. So the main clock is only applied to the first flip-flop, and the output of this flip-flop is given as a clock, as a source of triggering for next flip-flop. ठीक है? And this continues. Likewise, the clock to the next flip-flop will be the output of this flip-flop. ठीक है? So this type of circuit where the clock is given to only one unit, one main or first unit, is classified as an asynchronous type of a system. Why? Because all other systems will not trigger in tandem or in sync with this clock. They will trigger on the basis of this clock. This will trigger on the basis of this clock. Right? You get my point? So सारे एक साथ trigger नहीं हो जाएंगे. Rather trigger हो भी सकते हैं, लेकिन the point is वो इस क्लॉक पे डिपेंड नहीं करेंगे, बल्कि जो उनको अपना क्लॉक जनरेट किया होगा. जब पूरा सर्किट वर्क्स ओनली ऑन दिस क्लॉक, या पूरे सर्किट को यही कॉमन क्लॉक जाए पूरे सर्किट को, उसको हम कहते हैं एक सिंक्रोनस सर्किट. व्हाई? बिकॉज दैट इट्स ऑपरेशन विल बी सिंक्रोनाइज्ड विद ओनली वन पर्टिकुलर सिग्नल, एंड दैट्स दिस. नेक्स्ट पॉइंट, इन रिपल काउंटर, in ripple counter, the flip-flop where the clock signal is applied acts as the LSB side. In ripple counter, where the first clock is applied, or where the clock is applied, actually to be precise, because clock को एक जगह पे दे रहे हैं, that side will be the LSB side. That side will be the LSB. LSB हो गया least significant. उसका मतलब J0, K0 and Q0. Likewise, make inputs here. Don't forget these inputs. And ये इनपुट जो होगा टॉगल मोड के लिए क्या होगा?
क्या हमारा शुद्धिकरण? That's one way exactly, because I considered that you are talking about class, and if you are not talking about class, वही क्या? Is this the point to say? ये कोई बात बोलने वाली है मैडम जी? ये कोई बात बोलने वाली क्या आप इस घू से क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो? हुजूर का कसम ऐसे दिमाग में काम ही कर। Okay, hold that thing which you can hold. No need to vomit it out. Keep that and discuss later. Okay, let's continue. So मैंने क्या कहा एक और पॉइंट रिपल के बारे में, ये किस मोड में काम करता है जरा आप बताइए, आप बताइए, आप आपका नाम क्या है? हाँ? अफसर. Okay, Afsar, tell me which mode they are operated? These are operated in toggle mode. Whole class knows, Afsar. So by toggle I mean J value, K value should be 1, 1. Can I make them using T flip flop? Can I make this ripple counter using T flip flop? Yes or no? Yes, because T flip flop is actually a special case taken of J flip flop. वो toggle ही तो काम करता है. Anyways, so this design is a negative. Oh, sorry. This. ये बबल और एज ट्रिगरिंग का साइन बनाना जरूरी है, अदरवाइज इट विल बी लेवल ट्रिगरिंग. So this design is negative edge triggered 3-bit ripple counter. This design is known as 3-bit negative edge triggered ripple counter. Negative edge triggered 3-bit ripple counter. इसका नाम. Are you done with this? Shall I raise this? Shall I raise? Okay. And let's lighten here. Now let's analyze how this circuit works as a 3-bit negative edge triggered flip flop. मैंने इनपुट्स दे दिए हैं, that is J1 K1. Now बेटा जरा आप बताओ मुझे, आप जो तीन बैठे हो, आपका नाम क्या है? हाँ? ताहिर. मैंने यहाँ पे कहा नेगेटिव एज ट्रिगर्ड, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड. इन दोनों में से नेगेटिव एज कौन सी है? किस पे ट्रिगर होगी, इस पे या इस पे? हाँ? Very good answer. शाबाश. I appreciate the sincerity. Although your friend was saying, this is negative edge triggered. Negative edge triggered means जब आपका 1 to 0 ट्रांजिशन होगा. सुनो ताहिर, नेगेटिव ट्रिगरिंग में मतलब हो गया जब नेगेटिव एज आएगी क्लॉक की, 1 to 0 you can see a negative edge, 0 to 1 you see a positive edge, positive going edge. So this is the negative edge triggered circuit. So that means जो भी कोई सिग्नल होगा, सपोज ये पूरा अगर सिग्नल बनाएंगे, जहां कहीं भी नेगेटिव एज, ये पॉजिटिव एज है, ये नेगेटिव एज है, ये नेगेटिव एज है, तो यहाँ पे ट्रिगर होंगे. एनीवेज, so if I make a table for this, this is my clock signal. This is my MSB. कौन सी हो गई इसमें से? MSB कौन सी हो गई? Q2. This is Q1. This is Q0. Please everyone, eyes on board. This is the most important part of this lecture. So you just write first this clock as 0. When clock is 0, all previous state which is 0 0 0 वो होल्ड रहेगा, ठीक है? तो अभी कोई क्लॉक नहीं गया. Now there is the first transition. First transition. अब यूजुअली मैं कहता था फर्स्ट पल्स, लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा फर्स्ट नेगेटिव एज.
When I have the first negative edge of the clock, eyes on board please. When I have the first negative edge of the clock, ये negative edge किसको गई? Q0 वाले, इसको जाएगी ना. तो जो ही इसको negative edge मिली, 1 है मोड, क्या करेगा? 1 मोड है, इसका प्रीवियस वैल्यू 0 था, ये ना Q0 का प्रीवियस वैल्यू 0 है, और 1 इनपुट है, ये क्या करेगा? टॉगल करेगा, तो 0 क्या बनेगा? 1. नाइस, ये 1 बन गया था. ठीक, यहां पे क्या हुआ? इस क्लॉक को भी देखेंगे ना, और इसके सारे को इवैल्यूएट करना है. ये 0 था, 0 से 1 गया, मतलब 0 से 1 गया. ये नेगेटिव एज है, पॉजिटिव एज. क्या ये ट्रिगर, क्या ये टॉगल करेगा? क्या ये टॉगल करेगा? नहीं करेगा, राइट? बिकॉज इसको अपना ट्रिगर मिला ही नहीं, तो ये क्या करेगा? प्रीवियस स्टेट मेंटेन करेगा. जब तक ट्रिगर नहीं आया तब तक ये टॉगल नहीं करेगा. सो इट विल मेंटेन इट्स प्रीवियस स्टेट एज 0. इसको देखते हैं. प्रीवियस स्टेट थी 0, नेक्स्ट स्टेट भी 0. क्या इसको कोई ट्रिगर मिला? नहीं मिला, तो ये 0 बाय डिफॉल्ट ही रहेगा. नेक्स्ट नेगेटिव एज पे चलते हैं. दूसरी नेगेटिव एज, मतलब क्लॉक सिग्नल इज समवट लाइक दिस. ये आपका समझो क्लॉक सिग्नल है, ठीक है? So next पे अगर हम चलते हैं, first if I make the clock signal, by the way this thing is called, this diagram is called as timing. इसके नीचे कहीं आप एक डायग्राम बनाए, उसको लिखिए timing diagram. Timing diagram. What this tells me, if my clock is moving from 1 to 0, 0 to 1, इस ट्रिगरिंग के बेस पे कब क्या होगा? ये पॉजिटिव एजेस है मेरी, ये नेगेटिव एजेस है. So I'll just mark the negative edges. ओके, मैं साथ साथ ये बनाता जाऊं. अब मेरे पास कितने सिग्नल्स हैं? Q0, Q1 और Q2. ओके, जब क्लॉक का प्रीवियस वैल्यू क्या था? पॉजिटिव एज था, तो ये Q0 भी ट्रिगर नहीं हुआ. ये कब ट्रिगर हुआ? जब पहली नेगेटिव एज आई, तो ये 0 से 1 हो जाएगा. कब तक ये 1 रहेगा? ऑब्वियसली आफ्टर नेक्स्ट एज. लेकिन वो हमने अभी इवैल्यूएट नहीं किया, वो हम देखेंगे. अच्छा, Q1 का वैल्यू 0 था, तो 0 ही रहा. Q2 0 था, 0 ही रहा. ठीक, ओके जी. अब नेक्स्ट क्लॉक एज आई हमारी नेगेटिव एज. किसकी? क्लॉक. आइज ऑन बोर्ड प्लीज. डोंट वरी अबाउट दिस, डोंट बॉदर अबाउट दिस. जस्ट ये बना क्लॉक Q0 Q1 एंड डोंट वरी. और ये क्लॉक सिग्नल बना लो बस, इतना ही, वो बनाने की जरूरत नहीं है. अब जब मेरी नेक्स्ट एज आई, इन तीन में से पहले कौन टॉगल हो जाएगा? अब मेरी नेक्स्ट नेगेटिव एज आई, वो किसको मिलेगी? वो मिलेगी फर्स्ट वाले को ही. मतलब इसको फिर से ट्रिगर मिला, इनपुट है 1 टॉगल मोड में, तो ये 1 to 0 ट्रांजिशन करेगा. इसने करेगा कि नहीं करेगा? तो इसने किया 1 to 0 ट्रांजिशन. 1 to 0 ट्रांजिशन मतलब ये एक नेगेटिव एज है, ताए ये एक नेगेटिव एज देगा. 1 to 0 ट्रांजिशन मिला. अब किसको ये 1 to 0 ट्रांजिशन मिलेगा? इसको, इस क्लॉक को, क्योंकि प्रीवियस वैल्यू Q0 का क्या था? प्रीवियस वैल्यू क्या था? अब क्या हुआ? 0. इसका मतलब ये भी अब इस टाइम ट्रिगर हो गया. ट्रिगर. आर यू गेटिंग मी? एनीवन हु इज नॉट गेटिंग मी, रेज योर हैंड. ये ट्रिगर हो जाएगा. यू कैन कम टू मी लेटर. यू आर द ओनली वन इन द क्लास, सो यू कैन कम टू मी लेटर. ठीक है? सो फाइन. 1 to 0 ट्रांजिशन हो रहा है. ये ट्रिगर अब किसको करेगा? इस वाले फ्लिप फ्लॉप को. इसका आउटपुट क्या था? प्रीवियस 0. वो क्या हो जाएगा टॉगल करके? 1. तो पहला ट्रांजिशन इसने ले लिया. अच्छा, अब इसका देखते हैं. इसका क्लॉक हो गया फ्रॉम 0 to 1. पॉजिटिव एज है, नेगेटिव एज है? क्या ये टॉगल करेगा? पूछे नहीं करेगा. नहीं करेगा, क्योंकि पॉजिटिव एज मिली इसको. ये नेगेटिव एज पे ट्रिगर करेगा ना. सो पॉजिटिव एज मिली, मतलब 0 to 1 हो गया. इसका मतलब इसका आउटपुट अपनी स्टेट मेंटेन करेगा, विच इज 0. ठीक है? तीसरे क्लॉक पे चलते हैं. तीसरी नेगेटिव एज आ गई.
किसको मिलेगी नेगेटिव एज इस क्लॉक? Q0 वाले साइड को इनपुट है 1 1, ये कंटिन्यू टॉगल करता रहेगा। प्रीवियस वैल्यू 0 था, नेक्स्ट वैल्यू 1। अब मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं, आप यही देखते हैं 0 to 1 ट्रांजिशन, पॉजिटिव एज या नेगेटिव एज? क्या टॉगल करेगा? नहीं करेगा, इट विल मेंटेन इट्स स्टेट एज 1। 1 to 1 पॉजिटिव एज या नेगेटिव एज? नो ट्रांजिशन, so it will maintain its state as 0 because I told you day 1 रोबोट है, नेगेटिव एज पे ओपन आइज करेगा, वरना ऐसे कैसे रहेगा। 1 to 0 पॉजिटिव या नेगेटिव? 0 to 1, you're right, your ears are with me, but now eyes on board please। 0 to 1 transition, पॉजिटिव एज या नेगेटिव एज? पॉजिटिव एज। लेकिन उससे पहले मुझे क्लॉक का देखना है, सॉरी क्लॉक का ये तीसरी वाली ये थी ना, फोर्थ नेगेटिव एज। अब फोर्थ नेगेटिव एज में क्या होगा, ये 1 था, इसको नेगेटिव एज मिल गई तो ये 0 हो जाएगा फिर से, ठीक है ना। 1 to 0 ट्रांजिशन क्या है? नेगेटिव एज के लिए, इसका मतलब ये टॉगल हो जाएगा 0 पे। 1 to 0 नेगेटिव एज या पॉजिटिव एज? इसके लिए नेक्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए, तो ये अब पहली बार आपका टॉगल हो जाएगा टू 1, ठीक है। Is that okay? Now can you just continue the table please? Can you just continue the table and make some mistakes? That's also okay. Right वाला तो आपको always टॉगल होता जाएगा, उसको बना ही डालो एक बार में 0 1 0 1 0 1, क्योंकि उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसको बराबर साथ दे दो। So if you just see, ये सारे transitions जो है, after this they finally make 1 1 1, and this is nothing but now let me say the complete name. The complete name is negative edge triggered 3-bit ripple down counter. So this is counting down from 0, then this is 1, then this is 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So this is how we make a counter in digital circuits. Now, depending upon the final output required, I can connect these 3 outputs to 3 LEDs. I can connect these 3 outputs to 3 LEDs, and they can display me the states 1 0 1 and all that. Or else I can connect these outputs to maybe a 7-segment in a through an interface. I can connect them to 7-segment decoder. Then that will also give me the count on a 7-segment display. This is how counters are made in digital, ठीक है? Okay. So इसी के साथ अब आप लिखिए, this is your homework and this is important also. क्या है? आप यही चीज बनाएंगे T फ्लिप फ्लॉप से, आप यही चीज बनाएंगे T फ्लिप फ्लॉप से। पॉइंट नंबर 1, आप रिपल काउंटर बनाएंगे T फ्लिप फ्लॉप से। पहली बात, अभी बाय द वे कंप्लीट तो हुआ लेकिन एक काम तो भी रह गया, 1 मिनट रुकिए। अच्छा, अब हो गई अब से इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आपको कोई क्वेश्चन आएगा इस बारे में या कहीं भी, टाइमिंग डायग्राम, दैट टेबल एंड दीस थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट। And then additionally you should write some theory that the transition of this is on the negative edge of this, and the transition of this is when the Q naught toggles from 1 to 0. That theory you can write at least some lines, ठीक? So टाइमिंग डायग्राम बनानी है तो क्या इसमें इवन टेबल को भी देखने की जरूरत नहीं। Eyes on board please, टाइमिंग डायग्राम कैसे बनानी है? देखो जी, मुझे पता है मेरा सर्किट क्या है, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड, ठीक? इसका मतलब इसका प्रीवियस वैल्यू अगर 0 था, ये 1 तभी होगा, और 1 to मुझे क्योंकि टॉगल मोड में, तो 1 तभी होगा जब पहली नेगेटिव एज आएगी। तो यहाँ पे इसने स्टेट चेंज की, आइज ऑन बोर्ड प्लीज। अब ये मेंटेन करेगा स्टेट कब तक, जब तक उसको नेक्स्ट नेगेटिव एज ना मिले, नेक्स्ट ट्रिगर ना मिलेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट ट्रिगर है तो उसने फिर से स्टेट चेंज की। तो यू हैव टू कंटिन्यू दिस चेंजिंग द स्टेट्स विद चेंजिंग द स्टेट्स ऑफ क्लॉक, ठीक? अब दूसरे पे चलते हैं। मेरा Q1
Q1 का पहला टॉगल कब है? जब Q0 ट्रांजिशन करेगा 1 to 0, right? So that is over here. This is the first transition. अब ये स्टेट मेंटेन करेगा कब तक? जब तक इसको दूसरी नेगेटिव एज ना मिली, यहां तक, ठीक है? Is that correct? Now Q2 कब तक 0 रहेगा? जब तक इसको पहले ये पॉजिटिव एज है तो यहाँ पे नेगेटिव एज है, तो ये कंटिन्यू करेगा अपना वैल्यू तब तक जब तक इसको पहले नेगेटिव, और ये कब तक रहेगा इतना हाई? जब तक इसको नेक्स्ट नेगेटिव एज में मिली, लेकिन वो यहाँ पे कभी इसको मिल नहीं दे रही। तो देखिए यहाँ से भी आपको काउंटर का जो ये वैल्यू है वो निकल रहा है। ये आपका Q0 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये 1 हो गया, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 हो गया, ये 1 है, ये 0 है, ठीक है? उसके बाद ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है, उसके बाद आई चेक इट आफ्टर एनी नेगेटिव एज ऑफ क्लॉक, सो ये 0 है, ये 0 है, ये 1 हो गया, सो दिस विल कंटिन्यू। और ये कुछ नहीं, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, एंड लाइक दिस विल कंटिन्यू। इज दैट ओके? सूरज सामी, ठीक है?